Good morning, student. Standard 12 Chemistry, Chapter 6 Metallurgy. I, Kinnari Dave, today in the part 4 of Metallurgy, try to explain you about the second part of the conversion of ore. हमने फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कन्वर्शन ऑफ ओर के बारे में समझा था, and in that the concentrated of ore are of different four types we can procedure. The first one, that is the magnetic separation. In that we are seeing the magnetic properties either of the gangue particles or of the ore particles. The second we have studied for the concentration, that is the gravity separation or hydraulic washing. In that the principle is the different densities of ore and gangue particle is to be seen. The third and very important concentration of ore method, it is that method is known as the Froth flotation. In that Froth flotation, mostly sulfide ore is to be converted into the oxide ore. And that's why the wetting property of ore and gangue particle is to be as a principle. Ore is generally wet by the oil. In that we had used pine oil, turpentine oil, and ore particles other than the matrix or the material which is considered as an impurity is wetted by water. That is the Froth flotation method. And fourth and very important method, that is a chemical method, is leaching process. Leaching process, we can separate the ore like aluminium, silver and gold by adding. For aluminium we can use the sodium hydroxide or caustic soda, and for silver and gold we can use sodium cyanide or potassium cyanide as a chemical. So now today, after that, the second procedure for that conversion of concentrated ore into its oxide. So यहाँ पर दो तरह से जो आगे हमने चार प्रोसेस में से जो भी ओर को कॉन्सेंट्रेटेड किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना है into its oxide. So that method are two different way. Just look at the board, student. Extraction of crude metal from concentrated ore. किस तरह से हम कर सकते हैं? So this concentrated ore must be converted into suitable form for reduction. As we know, we require the pure metal. So oxide में convert करने से that is very easily we can remove the oxygen from particular metal oxide and we get pure form of metal. So suitable form में convert करना ज़रूरी है. And यहाँ example इसीलिए लिखा है कि most of the other ore are in the oxide form. जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में Fe2O3 है, फिर उसी तरह से हमने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Al2O3 बॉक्साइट, तो ये सारी ऑक्साइड ओर ही है. पर ZnS, गैलेना, ये सारी जो सल्फाइड ओर है वो सल्फाइड ओर को हमें पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, दिस मेथड for extraction of crude metal into their original reduction is by two different way. First, conversion of oxide, और फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाने के बाद में we have to go for the reduction of metal, that reduction into particular metal. So ये reduction जो करना है that will do by adding some of the good reducing agent.
एंड स्टूडेंट इसके लिए एक नया लेक्चर लेना पड़ेगा, बिकॉज रिड्यूसिंग कैपेसिटी, अब वी डू नॉट नो विच सब्सटेंस इज इजीली रिड्यूस बाय एडिंग विच सब्सटेंस, तो वो मेटल ऑक्साइड के लिए हम दूसरा लेक्चर लेंगे जिसमें हमें एलिंघम डायग्राम के बारे में समझना है. मीन्स वी हैव टू गो विद द थर्मोडाइनेमिक लॉ फॉर द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड इनटू मेटल. सो आज का हमारा अभी टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड. हम ऑक्साइड को 3 डिफरेंट वे से कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वे टू कन्वर्ट into oxide, that is calcination. Second one is known as roasting and the third one is known as smelting. Student, calcination is generally useful for the carbonate and oxides ore. Carbonate and oxide ore के लिए, while roasting is generally useful for the sulfide ore and the same way smelting is also for the sulfide ore. Student, जनरली ये डिफरेंस पूछा जाता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में. 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में आपका. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? रोस्ट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग? पापड़ रोस्ट करते हो घर में? रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? आप कैसे पापड़ रोस्ट करते हो? सो रोस्टिंग इज द प्रोसेस in which presence of oxygen is necessary. ये मेन डिफरेंस है स्टूडेंट. वो बात सही है कि वो सल्फाइड ओर के लिए होता है, पर वहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है. while the calcination is in absence of air or maybe the limited supply of air. मतलब कैल्सिनेशन के लिए एयर की एब्सेंस में हमें उसको हीट करना है, ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, या तो टोटली थोड़ा प्रपोर्शन ऑफ एयर सप्लाई करने से वो कैल्सिनेशन के मेथड से कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड हो जाती है वो ओर. देन द रोस्टिंग, इट इज हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड दिस बिकम ड्राई एंड पोरस. स्टूडेंट, ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि हमें पता है हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो मेटल के लोअर मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें जितनी हीट सप्लाई करनी है वो दोनों के लिए, फॉर कैल्सिनेशन ऑल्सो एंड फॉर द रोस्टिंग ऑल्सो, द सप्लाइंग ऑफ हीट इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर. बट कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इट हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब फास्टली उसको गर्म किया जाता है क्योंकि हम एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं. जबकि रोस्टिंग के लिए बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही हमें हीट करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हाई हीट दे देते हैं. So that is the main difference between calcination and roasting. Both ore is converted into its oxide form by supplying the lower temperature than its melting point. But in calcination, the temperature is at very high. Fastly supply किया जाता है temperature को. So रोस्टिंग में ओर जो है वो ड्राई एंड पोरस बन जाती है, जबकि कैल्सिनेशन में जो ओर है सिर्फ पोरस होती है, ड्राई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपके पास में कार्बोनेट ओर है, इसीलिए वो ड्राई नहीं होती है. सो ये भी मेन डिफरेंस है. ड्राई एंड पोरस, पोरस का मतलब आप सबको जानते हो स्पॉन्ज जैसे है, जैसे कि ये मेरे पास में स्पॉन्ज है स्टूडेंट्स, तो ये स्पॉन्ज में अंदर ऐसे छेद होते हैं थोड़े से, तो दैट इज नोन एज द पोरस, मतलब होल होता है, एरी होता है. तो दैट इज द ड्राई एंड पोरस फॉर रोस्टिंग. एंड कैल्सिनेशन के अंदर सिर्फ पोरस बनती है while converting it into the oxide. And the fourth is
रिवर्बेटरी फर्नेस दोनों में यूज किया जाता है. सो दिस इज द सिमिलैरिटी, इट इज नॉट कंसिडर एज अ difference between. For roasting and calcination, reverberatory furnace is used. और जब रोस्टिंग में क्या होता है, volatile impurity is removed as oxide, क्योंकि ये सल्फाइड जो है, अब यहाँ पर से volatile impurity, what is the meaning of volatile impurity students? Directly convert into the gaseous form. Solid is directly convert into the gaseous form और फिर वो एयर के साथ में मिक्स होके गैस के फॉर्म में निकल जाता है. तो दैट रोस्टिंग में मोस्टली इम्प्योरिटी वॉलेटाइल फॉर्म में होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, वो सारी ऐसी इम्प्योरिटीज रहती है. और कैल्सिनेशन में मोस्टली ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, दैट इज ऑल्सो द वॉलेटाइल बट इट इज अ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. एंड दिस थर्ड वन, इट इज अ स्मेल्टिंग. मैंने इसके साथ में ये आपको इसीलिए नहीं समझाया बिकॉज जनरली द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज ऑलवेज आस्क. स्मेल्टिंग के लिए इट इज फॉर सल्फाइड ओर एंड इट इज सुटेबल बाय एडिंग the reducing agent like carbon monoxide, aluminium etc. जिसे हम ये टॉपिक में मतलब कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल में हमें कवर करना है विथ द एलिंघम डायग्राम. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस मेन पॉइंट ऑफ दिस एंड देन we'll take some of the example of calcination and roasting. स्टूडेंट जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वो मेथड जो है वो आप इजीली लर्न कर लोगे. तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर में से जो उसका वेटेज है उस हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो बोर्ड के पर्पस में पक्के हो जाएंगे और बाद में हम आपको उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम थोड़ा सा हिंट आपको करते रहेंगे. So you have to not worried about this chapter because that way it is a very easy chapter. So you read and write also answers, and if you are having any of the queries you can always mail me. I'll always be ready to solve your doubts. So students सबसे पहले हम जाते हैं रोस्टिंग के लिए. एज मैंने रोस्टिंग के लिए आपको बताया था कि जैसे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से. तो रोस्टिंग में S प्लस सपोज सिंपल से लेते हैं. रोस्टिंग में S प्लस O2 gives SO2. उसी तरह से अगर हम ZnS और O2, ZnS का मतलब सल्फाइड और के साथ में है तो जिंक सल्फाइड, जिंक प्लस O2, then it converts into zinc oxide plus SO2 गैस. स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है और सल्फर जो है उसके साथ में, तो हम 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 3 ऑक्सीजन हमें करना है. तो यहाँ हम अगर ले सकते हैं 3 2 6, सो 6 ऑक्सीजन हम करेंगे. 3 2 6, सो यहाँ हम कर सकते हैं 2 और इधर भी 2 करेंगे तो 2 2 4, 4 and 2 6 ऑक्सीजन हो गया. उसके साथ में Zn 2 हो गया है तो यहाँ पर Zn को 2 करते हैं और सल्फर. तो दिस इज द अवर बैलेंस रिएक्शन. मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हमेशा बैलेंसिंग रिएक्शंस के लिए सबसे पहले हमें O2 मतलब ऑक्सीजन जो है उसे ही जनरली
रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में हमें बैलेंस करना होता है, तो बाद में बाकी का आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा रोस्टिंग प्रोसेस के लिए। अगर सेम वे आर्सेनिक के लिए हम लेते हैं स्टूडेंट, तो आर्सेनिक में भी आर्सेनिक उसको हीट करते हो ऑक्सीजन के साथ में। सो आवर प्रोडक्ट इज AS2O3। अब इससे अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे पास में आर्सेनिक जो है वो 2 है प्रोडक्ट के साइड में, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 2 6 करेंगे तो इजीली बैलेंस हो जाएगा। सो 3 और यहाँ हम करेंगे 2। सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ विल गो विद द balancing of the arsenic. So 4 arsenic. This is the some example with the roasting process. Now we'll go with the calcination. Calcination के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोनेट ओर के लिए यूजफुल होता है। तो हमारे पास में कार्बोनेट ओर में है कैल्शियम कार्बोनेट, जो है हमारे पास में मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसे हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, CaCO3। हीट करने से हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ वोलेटाइल इम्प्योरिटी इट रिमूव्स। उसी तरह से अगर हम लेते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, here also same way MgO plus CO2 in the form of gaseous impurity is reduced. ये 2 एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन के लिए और ये है रोस्टिंग के लिए। So students, hope you understand clearly what is the meaning of calcination. So calcination means when the volatile matter escape and metal oxides is leave behind, that is known as the calcination. And what about of the roasting students? So roasting, here the ore is heated in presence of air and the temperature is always below the melting point of the metal, that we have to keep in our mind. अब यहाँ पर सल्फाइड और जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, फॉर रोस्टिंग विल टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड फिर उसमें आगे स्लैग बनता है। जो स्लैग है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। कॉपर सल्फाइड ओर जो है, कॉपर की सल्फाइड ओर, इट इज हीटेड इन द रिवर बैटरी फर्नेस। तो कॉपर सल्फाइड ओर का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, so it converts into cuprous oxide. Cuprite is converted into cuprous oxide, and here also the SO2 gas is released. SO2 gas is released. Now here what happens student, this sulfide ore is heated in the river battery furnace and this ore contains iron. Suppose if this ore contain iron, मतलब Fe as a impurity अगर इसमें present है student, so what will happen if Fe is impurity, then it mix with the silica. Fe mix with the silica SiO2
और यहाँ पर हमें जो बनेगा वो है जिसे हम कहते हैं slag, and this slag it is produced if with the copper, then it is known as copper matte. So यहाँ FeSiO3, this is known as slag. So अगर कॉपर के साथ में हमारे पास में आयरन एज इम्प्योरिटी है तो आयरन का ऑक्साइड जो है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट सिलिका के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर स्लैग बनाता है. And here iron silicate means FeSiO3 and this FeSiO3 iron silicate and copper is produced in the form of copper matte, in the form of copper matte, जिसे हम कॉपर मैटी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट. और फिर यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, that sulfur dioxide is useful for contact process. Contact process. Student, in the chapter 7 we have already studied the contact process is for the preparation of H2SO4. So यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हम आगे यूज कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कर सकते हैं. सो दिस मेथड ऑफ रोस्टिंग इज रियली अ प्रॉफिटेबल एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर कन्वर्जन और ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड. होप सो स्टूडेंट्स, यू आर क्लियर फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.